Good. Hi Pallavi. Hi Ananya. Hi, sir. Hi. Hi. Good to see you. Same here. How are you? Yeah. Hi Vanna. Hello, sir. How are you? Fine. Good. तो आज तो आप लोगों ने काफी डिस्कस किया पल्लवी एंड वन्ना. Yes. Good. It was good fun. Very enlightening. Very enlightening. Hi Anurag. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग. कैसे हैं अनुराग आप? सर अभी तो छठ पूजा की तैयारी चल रहा है। हाँ. बस इसी की। हाँ. छठ पूजा कब का है? छठ पूजा सर हमारा तो यहाँ पे कल से शुरू होगा। कल से शुरू होगा. ओके. हाँ। और आप सब लोगों की दिवाली कैसी रही? फेस्टिवल वीक. It was good, sir. गुड. ग्रेट. We conquered Diwali this time. अच्छा. Yeah. क्या किया आपने दिवाली पे? बस बहुत सारा डेकोरेशन, गिफ्टिंग एंड like really enjoy it. Really? घर बैठे भी we enjoy it. हाँ. दिल्ली का तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था इस बार में. बहुत ज्यादा. बहुत पॉल्यूशन. बाहर तो आप जा नहीं सकते थे. बिल्कुल. चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल से. Yes. बाकी लोग फिर हमें धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे. सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ कॉज ऑफ एडिक्शन. और आज मैं काफ़ी बिजी था तो मैं आपकी चैट्स तो मैं नहीं देख पाया हूँ बट आई वॉज जस्ट सी कि पल्लवी एंड वंदा ने काफ़ी कुछ बात किया है कॉज ऑफ एडिक्शन के ऊपर. सो आई वुड सजेस्ट कि पहले पल्लवी से स्टार्ट करते हैं बट शी हैज़ टू से ऑन दिस टॉपिक कॉज ऑफ एडिक्शंस. और बाद में फिर सब लोग धीरे धीरे अपना अपना जो ओपिनियन है व्यूज़ है वो उसमें ऐड कर सकते हैं. चलिए तो ओवर टू पल्लवी. Okay. So hello everyone. I am Pallavi and I've been with Sir for over 2 years now. And during this journey, a lot of things I've learned. But one question which I realized during this process of basically discovering myself and healing myself, I realized आजकल जब भी हम लोग पार्टी पे जाते हैं कुछ भी करते हैं, lot of us मतलब most of the youngsters किसी भी पार्टी में जाओ कुछ ना कुछ वहाँ पे चल रहा होता है. People are doing all sorts of things. I probably can't say it out loud, but youngsters these days. And वो देख के मुझे कहीं ना कहीं एक शौक आता है कि what is it that is missing in our everyday life that people are resorting to consuming, maybe drugs or alcohol also is a great, addiction. I realize people like can drink whole night, whole morning, and I remember in my 20s, I was one of those who would barely touch all of these things. But then certain incidents in our life happened, and then I was like, I also started partying. I also, started doing a lot of things that other youngsters were doing, and taking up alcohol. There was a time when I was like, I like this high. But next day, जब हम लोग जाते थे घर में उठते थे, it would just crash, and I would be like, it made me feel nice for those 2 minutes when I was maybe having drinks, but next day it made me feel really crappy. Now, आज मैंने जब वंदना से बात की over WhatsApp chat, I realized when she was talking about, a lot of hardships that we face in life, कुछ भी personal struggle कभी कुछ होता है, maybe हमारे ambitions पूरे नहीं होते, तब we resort to such things. So I realized in my personal life, I actually was going through something very tough, and I could join the dots. I thought ये करने से ना I will forget all the sadness I have in my life. It will make me forget the incident or the all the hardships I'm having to face. Career wise also I did think a lot about
मेरे बहुत हाई एस्पिरेशंस थे बैक देन. मुझे जिंदगी जीना ज्यादा नहीं बट एम्बिशंस कुछ ज्यादा ही हाई थे. आई वाज लाइक इफ आई डोंट डू दिस 100% देन आई एम फेलिंग. सो आई वांटेड टू राइज द लैडर वेरी हाई and very early in life that too. So वो जब aspirations पूरे नहीं होते थे, I realized, I'm not fulfilling my potential. अब हो रहे हैं. I realized with experience, you will get all that you want if you consistently work towards it. But in 20s में इतना हमें समझ नहीं होता है कि ये सब समझ में आए. And अब जब मैं look back करती हूँ, it has a lot to do with self love also. अभी मुझे causes, मतलब ये मेरे causes हो सकते हैं. I see a lot of people around me who have similar causes. For instance, I know somebody very close. He grew up in a boarding school. And I noticed boarding school में ये तो बहुत ही common है. People are doing drugs and stuff like that left, right and center. And it made me wonder, is it because ये बच्चों को बहुत जल्दी भेजा जाता है out into the cruel world? So we say because your school में तो बहुत bullying होता है. बहुत kids have a hard time, especially when you're sent away at a very tender age of say 5 years old. तो तुम्हें दुनिया का पता ही नहीं है and फिर there's a lot of leg pulling and a lot of it. So मुझे लगता है maybe it has a lot to do with again lack of love coming from your surroundings. So these are my two bits. अभी recently मैं गई थी, चलो हम लोग तो बहुत थोड़े लेवल पे बात कर रहे हैं. I see people having some crazy stuff and फिर मुझे शॉक हो जाता है ये हमारी सोसाइटी जा किस तरफ रही है यार. Because when we were young हम लोग ये सब देखना तो भूलो बट सुनते भी नहीं थे ये सब. बट नाउ तो जैसे आप और मैं हेलो बोल रहे हैं उस लेवल पे आजकल people are consuming a lot of things. So yes, smoking also is one of those addictions. I feel a lot of people I notice जैसे हम ऑफिस में होते हैं ब्रेक्स पे जा रहे हैं तो स्मोक करके आ रहे हैं. So मैंने कहा is it the work stress that is leading you to possibly go and take it up? So I fail to understand and why these things happen. But if there's a solution that if we can all discover, I think nothing like it. And for us to go and spread it amongst our close ones will be of great help. कई बच्चे करते हैं घर जाके किसी को नहीं पता लगता है. I mean that person can be straight in front of you. A lot of parents don't realize कि उनके बच्चे ये कर रहे हैं. But it's the mask they put in front of their faces that I know it because मैं लोगों से बहुत जल्दी मिलजुल जाते तो मुझे बता देते कि ये हो रहा है वो हो रहा है. So yes, over to you sir. Thank you. So आज हमारे साथ कुछ नए लोग जुड़े हैं. जैसे हाय कोमल, हाउ आर यू? All good, sir. All good. How are you? बहुत बढ़िया और बहुत टाइम के बाद आपसे कनेक्ट हो रहा है. Yes, sir. Hello, everyone. Hello. कोमल जो है वो मेरे साथ आई थिंक कितना हम लोग 4 साल 2020 में शायद 2020 में सर 2020 हम लोग मिले थे. और कोमल जो है बहुत ही कंसिस्टेंट रही हैं अपनी पूरी हैप्पीनेस की जर्नी में. और इनकी लाइफ जो है जब आई थी मेरे पास काफ़ी चैलेंजिंग रही और उन्होंने हैप्पीनेस का पूरा पैकेज भी किया. और उसके बाद भी उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रहे. बट आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन आई स्पोक टू हर लास्ट टाइम कि उन्होंने जो सीखा था वो अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट किया उन्होंने. और जो और नए चैलेंजेस जो आ रहे थे उसको भी उन्होंने अच्छे से ओवरकम किया है. एनीवे ये बात हुए भी मेरे को लगता है आई थिंक 1.5 साल हो चुका होगा. सो मेंटेनिंग द हैप्पीनेस इन योर लाइफ. Absolutely, sir. Great. Following everything that you had told. चलो. Okay, so coming back to what Pallavi has said, काफ़ी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो उन्होंने अपनी लाइफ में देखा है, एक्सपीरियंस किया है, चाहे अपना पर्सनल है या अपने सराउंडिंग में फ्रेंड्स एंड नोन वंस के साथ. तो उन्होंने 2-3 चीज़ें उन्होंने बताई हैं. एक लैक ऑफ सेल्फ लव उन्होंने कहा है जो उसकी वजह से एडिक्शंस होती हैं. चेंजेस इन सोसाइटी ये उन्होंने पॉइंट रेस किया है. ब्रेक वर्क स्ट्रेस है. और एक और भी पॉइंट मेरे दिमाग में आया जब बात कर रही थी पल्लवी कि हम जब ऑफिस में थोड़ी देर में जाके स्मोक की ब्रेक लेते हैं. बहुत बार जैसे मैं जब एडिक्शन वाले क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ तो उनका ये कहना होता है कि बहुत बार जो स्मोकिंग है
दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ कि कोई हमें नीड है या कोई क्रेविंग हो रही है, इट इज़ मोर लाइक अ हैबिट। तो बहुत बार मैं ऐसा भी देखता हूँ कि लोग आउट ऑफ हैबिट भी जो है वो ये सब्सटेंस अब्यूज़ वगैरह करते हैं, और जिसकी वजह से ये एडिक्शंस हो जाती हैं। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड पल्लवी ऑन दिस? आई एग्री सर, वो हैबिट एक बार पिक हो जाए ना, उसको उससे छूटना बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड बट आई हैव सीन पीपल, ब्रिलियंट किड्स हु वर टॉपर्स इन देयर क्लासेस, लूज देयर पाथ्स बिकॉज ऑफ इट। एंड अब जब वो एडल्टहुड में आते हैं, इट्स सैड, वो जैसे आफ्टर अ लॉन्ग नाइट आउट वो बेड पे पड़े रहेंगे। सो दे आर नॉट यूजिंग द फुल पोटेंशियल। एंड मुझे भी कहीं रियलाइज हुआ दैट यू नो वी हैव टू स्टॉप इट समवेयर फॉर श्योर। और ये हैबिट तो डेफिनेटली समथिंग, सब मुझे जैसे मैं ऑफिस में जाती हूँ बोलते कर लो, मैंने कहा नहीं भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, थैंक यू फॉर द ऑफर, बट यस। सो वरना आप कुछ उसमें ऐड करना चाहती हैं? हाँ सर, कहने को तो काफी कुछ है। मैंने अपनी फैमिली में ही देखा है। मतलब जब से आप होश संभालते हैं, चीजें समझने लगते हैं, तो घर में कॉन्फ्लिक्ट देखा था। मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता पाऊंगी, बट कॉन्फ्लिक्ट देखा था इस वजह से कि हमारे घर के मेंबर थे तो वो करना कुछ और चाहते थे करियर में, और गार्जियन ने कुछ और अपनी विश रोक दी कि नहीं यू हैव टू डू दिस और दैट। जबरदस्ती उनसे वही कराया गया, और इस वजह से वो पता नहीं दुख से उबरने के लिए या फ्रस्ट्रेशन में आके स्टार्टेड टेकिंग ड्रग्स, अल्कोहल, और इससे आगे भी कुछ चीजें ऐसे करके, मुझे पूरा कंफर्म नहीं बट इस तरह का। तो घर में माहौल काफी नेगेटिव रहता था। कभी कभी मैं अपने फ्रेंड साथ मतलब कभी कभी हंसती भी नहीं थी, तो वो लोग कहते तुमको कोई डिप्रेशन में जान के वो कर लेगा, थोड़ा जबरदस्ती भी हंसा करो। तो इस तरह की चीजें थी जो मेरी मतलब पूरी लाइफ ही इससे कैसे थे प्रभावित रही। मैं खुद भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस से मैं खुद डिप्रेशन में आ गई थी। तो हालांकि वो आदत कम हुई है उस पर्सन की, लेकिन पूरी छूटी नहीं है। तो वो एक होता है केस गॉन हो गया, फिर वो कभी गॉन हो जाता है, वो फैमिली में चलता रहता है। तो एज ए पर्सन हालांकि बंदा वो काफी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन रियल लाइफ लोग क्या करें, काफी नेगेटिविटी रहती है उससे। तो कोई ऐसा कोई उपाय हो कि ये चीज छूट जाए? काफी कुछ हम लोग ने ट्राई किया थ्रू स्पिरिचुअलिटी, थ्रू हाँ प्रेयर के जरिए जरूर उनमें कुछ चेंज आया, काफी कुछ थोड़ा छूट गया, थोड़ी हेल्थ भी बन पाई, लेकिन वो पूरा नहीं छूटा है। कल बात करेंगे उसके बारे में भी। और कोई लोग? सुभाष जी, आप कुछ उसमें नया कुछ ऐड करना चाहते हैं? सर मुझे तो इसके बारे में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो एक बार हैबिट हो जाता है तो लोग यूज टू हो जाते हैं, और फिर उनको मिलता नहीं है तो वो बहुत ऐसे हेल्पलेस फील करते हैं। और जो मैंने देखा है मूवीज में और जो सुना है उसमें ये है कि एक बार उनको ये हैबिट हो गया तो जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक वो ऐसे तड़पते रहेंगे, और जब वो एक बार वो ले लेते हैं उसके बाद वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो वो एक हैबिट हो जाता है, जैसे आप अभी डिस्कशन कर रहे थे, और वो उससे बाहर निकलना, वो एक विशियस सर्किल है, उस विशियस साइकिल के अंदर वो घुस गए। उससे बाहर निकलना तो क्या, उसको जब तक वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे तब तक वो उसी के अंदर घूमता रहेगा। तो उसको डायरेक्शन चेंज करने के लिए या तो उसको कुछ डिफरेंट, कुछ ऐसी चीज देनी है जो उसकी स्ट्रेंथ्स है, उसको अंडरस्टैंड करके उसको कुछ एक पर्पस देना है कि भाई तुम ये करो, और उसकी जो एनर्जी है उसको दूसरी जगह डाइवर्ट करे, तो शायद कुछ हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो। राइट। अनन्या ने भी अपने कुछ आइडियाज शेयर किए थे। सर मुझे तो जैसे अभी बोल रहे थे कि people in their 20s like to drink and they like to do drugs and they get addicted. So maybe people in their 20s do it, but as someone who is in our 20s, I have been offered alcohol, I have been offered drinks, I flatly refused. I just drank once and I did not enjoy it, and I never drank again. And I have seen it with my father who's in his 50s. He was having these addiction issues. He overcame. I don't know how he overcame, what he did, but I told him, "Papa, I don't like it. I get bothered by it," and he stopped right away.
तो पीयर प्रेशर भी एक रीज़न है जो एडिक्शन की तरफ लेके जाता है हम लोगों को। अनुराग, you want to add something? सर बिल्कुल, मेरा आई थिंक जो पर्सपेक्टिव है रिगार्डिंग एडिक्शन को लेके, नो डाउट एडिक्शन ड्रग्स का तो एक अलग सा क्लिक है, बट मैंने जो नोटिस किया है कि एक नया टर्म भी अब बहुत लोग कह रहे हैं, जिसे हम फूड एडिक्शन भी कहते हैं। मैंने बहुत सुना है कि द शुगर दैट वी कंज्यूम एवरी डे, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, वो भी एक तरीके से एडिक्शन जैसा बन रहा है, एंड इट इज गिविंग वेरी वर्स्ट रिजल्ट। तो क्या इसको एक एडिक्शन कहना ये सही है या गलत है? आई एम स्टिल कंफ्यूज। तो आप बोल रहे हैं कि शुगर कंजम्पशन इज इट कमिंग अंडर एडिक्शन? ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सर मैंने कोविड के टाइम में बहुत सर्च किया था कि जो कैंसर होते हैं मोस्टली किन किन वजह से होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मैंने सर्च किया कि हमारा लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रीजन है व्हाई दिस डिजीज इज अफेक्टिंग, एंड लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है शुगर। मैंने शुगर तो अकेला रीजन नहीं है, ऑल टाइप्स ऑफ व्हाइट फूड जो ऑन्कोलॉजिस्ट हर कोई कहते हैं, शुगर हुआ, सॉल्ट, एंड आपका बैंटोटेक्सिन व्हिच इज लाइक, वो तो शुगर का लाइक सगा बाप निकलेगा। इट्स लाइक पूरा एंटायरली स्पाइक कर देगा एंड देन ऑल ऑफ अ सडन इट ड्रॉप्स। और उसके अलावा जैसे कि हाई प्रोसेस्ड फूड जिनमें इनडायरेक्टली हम शुगर कंज्यूम करते हैं, भले लेबल्स में मेंशन नहीं करते हैं कि वो शुगर डालें, तो एक तरीके का एडिक्शन है जिससे ऑब्वियसली नॉट इवन कैंसर, कार्डियक अरेस्ट हुआ, डायबिटीज हुआ, ऑल सॉर्ट्स ऑफ बीमारियां निकलते रहते हैं। और ये एक ऐसा एंडेंस लूप बनाता है दैट इट्स लुक्स लाइक कि यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है इसमें भी एक बहुत अच्छा खासा सेशन होना चाहिए रिगार्डिंग दिस फूड एडिक्शन। Right. Anybody else wants to share their ideas? Hello, Vartika this side. Yeah. Hi, Vartika. Hi. So I think जितना मैंने लोगों को सुना, either पल्लवी और I think अनन्या was there. I guess जितने भी addiction होते हैं ना, उसके लिए एक बहुत ही strong motive होना चाहिए उसको खत्म करने का. I'll take my example. I was a high sugar addict person. मतलब मुझे इतना ज्यादा शुगर पसंद था, मैं डेली चॉकलेट्स एंड क्या बोलते हैं आइसक्रीम्स, ये मेरा खाना था ही था, मतलब एवरी डे आई हैव टू कंज्यूम. बट वन डे आई रियलाइज दैट समहाउ इट वाज अफेक्टिंग माय, मतलब आई वाज बिकमिंग क्वाइट लेथार्जिक और वेट ऑब्वियस बढ़ रहा था. तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने, मतलब अचानक से मैंने नहीं किया, बट थोड़ा थोड़ा आई स्टार्टेड कटिंग इट डाउन बिकॉज आई हैड दैट मोटिव इन माई माइंड, स्ट्रॉन्ग मोटिव, आई हैव टू बी हेल्दी. तो लेकिन उसके लिए आई डिड नॉट गो फॉर द एक्सट्रीम्स, मैंने बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लिए, एंड देन नाउ आई एम नॉट अ शुगर एडिक्ट. सो इट टुक मी अराउंड 2 to 3 years. Okay. So it was a good thing for me that I left sugar. Means not completely, because किसी भी चीज की एडिक्शन नहीं अच्छी होती, लेकिन किसी भी चीज को completely छोड़ना भी अच्छा नहीं है, like sugar, salt, anything. I cannot talk about smoking because it is completely bad. You should not have even a bit of it. But जहाँ तक शुगर का सवाल है, थोड़ा सा कट डाउन किया जा सकता है धीरे धीरे करके. Small steps can make a massive transition. I agree, sir. I think I'm a sugar addict. Who? Like Vartika used to be, sugar addict. Pallavi. Okay. Yeah. Yes. Like मेरा दिन नहीं गुजरता unless I have a chocolate these days, or maybe because of stress or yeah, sweets. अब तो दिवाली आ गई है, so I keep having it every day. So then I'm an addict to fast food. Addict to fast food. Yes. That too. चलिए, सबसे पहले हम एडिक्शन को डिफाइन करते हैं. हाउ डू यू डिफाइन एडिक्शन? अच्छा, अनुराग एंड मिस्टर ब्रज पांडे, दे वांट टू से समथिंग. You want to say something? सर आई थिंक जो फूड एडिक्शन का केस, जैसा अभी बोले कि एडिक्शन क्या है, मोस्टली जितना मैं जानता हूँ कि एक तरीके से सिचुएशन कह सकते हैं या फिर एक फिनोमेना है जहाँ पे हमारा बॉडी
किसी चीज को रेजिस्ट करने के लिए या फिर उसे टेम्पररीली काम डाउन करने के लिए हम कुछ ऐसे इलिसिट सब्सटेंस का यूज करते हैं जो मे बी हमें टेम्पररी रिलीफ पहुंचाए, राहत। मिस्टर ब्रज पांडे, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस सर। हेलो, या आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं? Am I audible, sir? यस, यू आर ऑडिबल एंड वेलकम। आई थिंक आप फर्स्ट टाइम आज कम्युनिटी मीटिंग में आपने ज्वाइन किया है। Yes, sir. चलिए, वेलकम टू द मीटिंग। यस Sir, I would like to take the example of myself. जी। I do not take the point that people start smoking and drinking at teenage or at 20s. I started it at the age of 26, 27. I first smoked at the age of 26, 27, and I drank for the first time, and that too in Gujarat, non-liquor state. So I would just tell that I smoked for around 3 months, and then I quitted it on 31st of December 2011. And on 15th of September 2012, I had a heart attack. And that was a major one, 90% blockage in the artery. And that was because of my high cholesterol, because I left smoking and I became lethargic and I was having a lot of oily food in Gujarat, Ahmedabad. That led to my cholesterol level rise to more than 550. And I had a major blockage in my heart. And I had almost slept for smoking for 9 months. So there should be a balance with living the thing. Any addiction, when you are living, there should be a balance. You should not quit it at a glance. कि अभी आज सोचा और आज ही छोड़ दिया. Then it will be going to affect you a lot. Then doctors will also not be able to help you. You need to balance yourself. कि हाँ भाई आज 20 पी रहे हैं, आज 2 पी रहे हैं, आज 2 पफ मार रहे हैं, आज 1 भी नहीं मार. लेकिन अगर इमीडिएटली अगर हम उस चीज को लीव करते हैं तो they might suffer a heart attack like me. No doubt. That's all I want to add, sir. ठीक। Yeah, anyone else wants to add? Okay, अनन्या कुछ बात कर रही थी। I think I am addicted to fast food. Okay. तो हम लोग सोच रहे थे कि एडिक्शन में नॉर्मली लोग बात करेंगे या तो ड्रग्स के बारे में, स्मोकिंग के बारे में, अल्कोहल के बारे में, बट आई वाज सरप्राइज कि हमारे ग्रुप में शुगर एडिक्ट ज़्यादा है। सर क्योंकि शुगर इटसेल्फ इज अ स्लो पॉइजन, हम इसे खाने की तरह ट्रीट करते हैं बट ऑन्कोलॉजिस्ट कॉल इट एज अ स्लो पॉइजन. दिखता नहीं है और उसका असर शरीर के अंदर होता रहता है. And one more thing, I think sugar is the easiest available मतलब चीज है जो कि आपके एडिक्शन को, जैसे अगर कोई ऐसी क्रिबिंग हो रही होती है कार्ब्स की या फूड की, तो सबसे पहले शुगर याद आती है. कोई भी चीज, चाहे वो एडिटेड ड्रिंक हो, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे कुछ भी. आप सबसे ज्यादा अगर परेशान होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, सबसे सामने पहले शुगर ही दिखता है. घर पे अवेलेबल भी होता है, छोटी मोटी चॉकलेट्स, कैंडीज, कुछ भी हो, तो धीरे धीरे वो हैबिट डेवलप हो ही जाती है. अवेलेबिलिटी भी एक रीजन है या कॉज है कि एडिक्शन को बढ़ाता है वो, क्योंकि स्मोकिंग में आप देखते हैं, स्मोकिंग में अवेलेबिलिटी आसान होती है, ज़्यादा होती है. अल्कोहल में इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती. So availability can be another factor to it. और कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? डॉक्टर अनामिका has joined.
Hi, good evening, sir. Yeah, hi. No. Sorry, I joined a little late. I'm traveling tomorrow morning, so I was occupied with work and Oh. packing. So I missed the first part of the discussion. Okay. But I just wanted to add one thing regarding addiction. Like, I don't take tea, coffee, no smoking, no drinking. So I'm very sorted on that part. That's great. And nothing that I cannot live without. But I remember when I was in BHU doing my master's, so that time I had developed one habit of going to Sankat Motion on every Tuesday and Saturday. Okay. And no matter what happens, I used to go. Even when जब संकट मोचन में blast हुआ था, उसके 10 मिनट पहले मैं वहाँ से निकली थी. I don't remember the year जब संकट मोचन में blast हुआ था, तो मैं इतनी regular थी इसके साथ. So एक बार discussion हो रहा था, one of my friends said कि सिर्फ smoking, drinking ही addiction नहीं होता. This is also an addiction because if you can't live without something, that is an addiction. So वो मेरे लिए बहुत alarming था कि जाहिर सी बात है कि मतलब कुछ भी हो जाए, मुझे जाने ही जाना होता है. बट आज की बात मैं अगर करूं तो आई गिवन अप दैट हैबिट एज वेल. मुझे याद आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. मुझे याद आ रहा है डॉक्टर अनामिका, आपने मुझे शायद एक बार बोला था कि आपने बोला था, किसी और ने बोला था कि मैं ट्रैवलिंग टाइम में हनुमान चालीसा सुंदरकांड खत्म कर देती हूँ. You only said हाँ मतलब बहुत कुछ पूरा याद था मुझे, क्योंकि हर ट्यूसडे सैटरडे हम पढ़ते थे तो पूरा याद था. इट वुड टेक हार्डली 10-15 मिनट्स लगता था. और आज की डेट में मैं बहुत कोशिश भी करती हूँ, बट आई स्किप ऑन एवरी सैटरडे एंड ट्यूसडे. आई एम नॉट एबल टू डू इट. सो एक एक्सट्रीम से आई हैव रीच्ड अनदर एक्सट्रीम. So you have reached to you have got de-addicted, huh? de-addicted हो गई हूँ कि अब मैं चाह के भी वो नहीं कर पाती हूँ. So वही है मेरे लिए, वही है कि in terms of sugar intake की बात हो रही है, तो मैं बोलूँगी I can relate very much to that. क्योंकि अभी recently मेरा एक ये हो गया कि whenever I am like in stress, तो मेरी वो emotional eating होती है. And usually I'll go for like chocolates, pastries, मिठाइयाँ नहीं, but kind of ये चीजें. So how to deal with that? That is one thing I would like to understand. Anything else? सर बात अवेलेबिलिटी की हो रही है, तो एक बार हम लोग हॉस्टल में रात को 9 बजे वी थॉट कि लेट्स ड्रिंक एंड वी हैड नथिंग टू ड्रिंक. अब रात को 9 बजे आप गर्ल्स हॉस्टल से बाहर जा नहीं सकते लेने, और मंगाओगे कैसे? सो वी वर कॉलिंग ऑल दीज डिफरेंट पीपल, सर्चिंग ऑनलाइन कि कहीं से मिल जाए, नहीं मिल. Right. So non-availability can be a good reason for de-addiction. Yes, Mr. Pandey. Mr. Bresh Pandey, आपने hand raise किया था. You want to say something? Sir, at the concluding note, I will be just saying two of my lines please, on addiction. Please. At the concluding note. अच्छा, last में. ठीक. Yes, sir. अच्छा, ठीक. Good. तो गर्ल्स हॉस्टल में ड्रिंक्स नहीं मिलती हैं, इसलिए लड़कियां जो हैं कम एडिक्ट होती हैं ड्रिंक्स में एट द एज ऑफ 20. पल्लवी स्पेशली एट द एज ऑफ 20, Yes, sir. वो ये मेरे साथ भी हुआ है. Suddenly, because it's not available for और भी ज़्यादा कॉल लगाओगे, फिर पूछोगे अरे भैया है क्या आपके पास? अच्छा. राइट. बहुत सारे आइडियाज आए हैं. पल्लवी ने सबसे पहले पॉइंट एक रेज किया था कि व्हाट पीपल आर मिसिंग दैट दे आर गोइंग फॉर एडिक्शन. इसके ऊपर कोई आप लोग कुछ शेयर कर सकते हैं? क्या चीज़ है जो हम मिस करते हैं, इसलिए हम किसी न किसी चीज़ की एडिक्शन पर चले जाते हैं? जी. यस मिस्टर पांडे. एक्चुअली सर, हम लोग लाइफ में इतने स्ट्रेस्ड ऑफ रहते हैं कि हम ईज ऑफ खोजते हैं, और ईज ऑफ इन द सेंस ऑफ कंपनी खोजते हैं इन लिविंग बीइंग. लेकिन जब वो पॉसिबल नहीं हो पाता है तो फिर हम लोग कहते हैं कि ठीक है सिगरेट सही, लेकिन कंपनी तो दे रहा है, जल तो रहा है साथ में. Because people are not tolerating us and we are not able to tolerate the people to a certain extent at a certain point of time. तो हम कहते हैं कि चलो ईज आउट करते हैं किसी भी एडिक्शन के साथ, अकेले साथ में बैठे खुद से बातें करें. इसमें ऐड करना चाहते हैं क्या चीज़ है जो हम मिस करते हैं? या सुभाष?
सर हम लोग हैप्पीनेस ढूंढते हैं। हमको लगता है कि अगर हम लोग स्मोकिंग करेंगे तो उससे हमको हैप्पीनेस मिलेगी, या फिर जैसे मोबाइल एडिक्शन है तो हम लोग उसमें रील्स देखने में हमको लगता है वो देखने से हमको हैप्पीनेस मिलेगी, और वो हैप्पीनेस के चक्कर में हम लोग वो चीजों से एडिक्ट हो जाते हैं। आई थिंक वी लुक फॉर हैप्पीनेस और उसकी वजह से हम लोग एडिक्ट हो जाते हैं। यस सलमान। आपका म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी सर, आई वाज सेइंग मैं ऑफिस में भी नोटिस करती हूँ कई लोग है ना तंबाकू से बहुत एडिक्टेड होते हैं। हर 2 घंटे में जाके तंबाकू बाहर करके फिर आएंगे हाँ गुटखा, एंड आई मीन व्हाई आर दे डूइंग दिस? मतलब काम छोड़ के, एंड देन व्हेन यू टेल देम सो मेनी टाइम्स इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, इट्स these things, फिर भी आते हैं हर 2 घंटे। So that's an addiction, right? And you see across the building हर जगह you see these spots. अब तो मेट्रो स्टेशन पे भी फाइन उन्होंने शुरू कर दिया, but I'm like, why do you need to do all of this? आओ काम करो और जाओ। आपको किस चीज का एडिक्शन है पल्लवी? अब तो मेरे को कोई एडिक्शन नहीं है सर। I am absolutely fine. अच्छा, पहले कोई एडिक्शन था आपका? Addiction नहीं, but I used to really like going out and drinking, like partying and drinking and all of it. बस और कुछ nothing crazy, but yes. तो जो लोग But I've seen people. राइट, लेकिन जो लोग ड्रिंक नहीं करते हैं वो क्या सोचते होंगे, क्या पड़ी है इनको ड्रिंक करने की, पार्टी में जाए खाएं पिए और अपना चले जाए घर। Yes, yes, yes. सर मैं कुछ कहना चाहूंगी सर। हाँ, कौन है आप? आपकी आवाज कौन? वंदना। हाँ बताएं या प्लीज। जैसे आपने कहा क्या चीज मिस करते हैं, तो वही जैसे कुछ मिलता जुलता है सुभाष सर से कि हैप्पीनेस या आपके जो एम्बिशंस है वो फुलफिल ना हुए तो दुख को कम करने के लिए, वो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए इस वजह से भी कुछ लोग इस तरफ आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो एडिक्टेड उन लोग में दया करो, अपना दुख भुलाने के लिए कुछ समय के लिए काल्पनिक दुनिया में रह रहे हैं। ये भी रीजन हो सकता है कि अपने दुख को बांटने या उसको भुलाने के लिए कुछ समय के लिए। गुड। यस अनुराग। आई थिंक जो कॉजेस आप बोल रहे हैं एडिक्शन का, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स तो है ही। मगर सर मैं अगर खुद का कहूँ तो जिस स्टेट में मैं रहता हूँ उड़ीसा में, ये हमारे कल्चरल जैसा है। मतलब शहरों में तो नहीं होता, बट सर्टन विलेजेस और सर्टन ऐसे पहाड़ी इलाकों में नॉट सेइंग एडिक्शन, मगर एक सर आपने सुना कि हांडिया एक होता है जो बहुत फेमस है उड़ीसा में, झारखंड, छत्तीसगढ़ में। तो उसे एक तरीके से कल्चरल सिंबल माना जाता है कि अगर किसी फैमिली में कोई बॉर्न हुआ या किसी का डेथ हुआ तो हम इसे एक तरीके से एज ए कल्चरल रिजेम्बलेंस यूज करते हैं, बट पीपल टेक इट अदरवाइज। उन्हें लगता है कि हाँ उनका कल्चर में मेंशन है तो उन लोग तो पीते होंगे, बट हमारा ऐसा लाइक नहीं है। मैंने कभी लाइक नेवर हैव ड्रिंक हांडिया, मैंने सुना है बहुत, बट उसके अलावा अगर मैं और कहूँ तो हमारा सिर्फ कंट्री का ज्योग्राफिकल रीजन भी एक रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि हमें एडिक्शन करना ही नहीं चाहिए, लाइक हमें अल्कोहल लेना ही नहीं चाहिए। क्योंकि सर हिस्टोरिकली देखा जाए तो अल्कोहल ओनली बहुत कंट्रीज में लिया जाता है जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम ठंड हो, जैसे यूरोप हो या फिर एनी नॉर्थ पोल रीजन, वहाँ पे लेना इट्स कंपल्सरी, क्योंकि आप सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, बॉडी झेल ही नहीं पाएगा उतना ठंड को। एंड होता ठीक है, मैं अगर सोचता कि हाँ इंडिया भी नॉर्थ पोल में रहता है, इट वुड हैव बीन द सेम स्टोरी, बट इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री। और मैं समझ पा रहा हूँ कि किस वजह से इनको इतनी एडिक्शन लगे, स्पेशली दारू और एनी सॉर्ट ऑफ थिंग। सर लेकिन लेट मी ऐड टू दैट, इफ यू गो टू एम्स्टरडैम, जैसे यहाँ पे मंडी लगती है ना, वहाँ पे पीपल गिव आउट दीज ब्राउनीज विद हैश एंड ऑल ऑफ इट, तो वहाँ पे तो ये सब चीजें लीगल है, इंडिया में लीगल है, वहाँ पे तो इट्स ऑल अलाउड, लोग खुला करते हैं। क्लीन हेल्थ हेल्थ के लिए तो ठीक नहीं है। राइट। ये अनन्या वांट्स टू से समथिंग। सर मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा था कि व्हाई डू आई लाइक फास्ट फूड सो मच, सो शी वाज सेइंग दैट योर बॉडी वांट्स चीप डोपामिन। एंड आल्सो उड़ीसा में कल्चरली चलता था, हरियाणा में भी कल्चरली हुक्का चलता है, लाइक यू विल फाइंड पीपल ओल्ड एजेड गैदरिंग। आजकल तो हुक्का बार भी हैं गुड़गांव में। हुक्का बार, हाँ।
तो डोपामिन रिलीज होता है एडिक्शन से, राइट? सो व्हाट आई थिंक कि सुभाष जी ने बहुत अच्छा पॉइंट एक रेज किया है, बहुत को हम एक साइकोलॉजिकल लेवल पर अगर हम देखें, एक चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि हम वही करते हैं जिसमें मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट नज़र आता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल, जो लोगों ने मेरे साथ काउंसलिंग की है कुछ टाइम के लिए, तो मैंने ये एग्जांपल बहुत बार मैं देता हूँ कि जैसे हम सब जानते हैं कि गुस्सा करना गलत है, लेकिन हम सब गुस्सा करते हैं। क्यों गुस्सा करते हैं? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं हमारे एक्सपीरियंस क्या है कि जो गुस्सा करता है वो डोमिनेट करता है, उसकी बात मानी जाती है। हमने बचपन से देखा है, घर में माँ बाप की लड़ाई होती है, जो गुस्सा करता है उसकी बात मानी जाती है। स्कूल में टीचर की बात माननी पड़ती है, नहीं मानेंगे तो टीचर गुस्सा करेगा। मूवी देखते हैं तो वहाँ पे हीरो कौन है? जो गुस्सा करता है। यानी गुस्से का जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरी विजडम है, वो क्या है कि गुस्से के कुछ एडवांटेजेस हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू कॉन्सेप्ट इज कि हम सबकॉन्शियस लेवल पे, जैसे सब जानते हैं कि कॉन्शियस माइंड इज़ वेरी स्मॉल, जस्ट 5% जो लॉजिकल है, जो रीजनिंग करता है, डिसीजन लेता है। लेकिन हमारा जो इमोशनल माइंड है दैट इज़ सबकॉन्शियस माइंड, जहाँ पे सारी इमोशंस हैं जो कि बचपन से जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसकी वजह से वो इमोशंस डेवलप होती हैं, एंड इट इज़ वेरी बिग, दैट इज़ 95%। तो यानी क्या होता है कि आप अभी जैसे बात कर रहे हैं कि एडिक्शन क्यों नहीं करना चाहिए, जैसे पल्लवी ने कहा कि जो टोबैको लेते हैं या गुटखा खाते हैं उनको क्यों लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा लॉजिकल माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। और ऐसा नहीं है कि जो लोग टोबैको ले रहे हैं या जो ड्रग्स ले रहे हैं या जो वीड्स ले रहे हैं वो नहीं जानते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। 5% माइंड जो है वो जानता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके एक्सपीरियंसेस कुछ डिफरेंट है और हम वही करने पर मजबूर हो जाते हैं। आपने कितनी बार देखा होगा कि लॉजिकली तो हम कुछ करना चाहते हैं, सलाह हम कितनी अच्छी दे पाते हैं औरों को, लेकिन वही चीज़ हम खुद इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाते? इसका मतलब क्या है कि नॉलेज होने के बावजूद भी हम एक तरीके से कंपेल हैं, एक तरीके से विक्टिम हैं वो बिहेव करने के जो हम नहीं करना चाहते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब भी एडिक्शन होती है, चाहे वो शुगर की हो, चाहे वो टोबैको की हो, चाहे वो मंदिर जाने की हो, चाहे अभी हमने एक पॉइंट मिस कर दिया है, आजकल मोबाइल एडिक्शन जो है बहुत बड़ा एक कारण वो है, वन ऑफ द मेजर एडिक्शन जो है दैट इज़ मोबाइल स्क्रीन टाइम जो है, या उसका एडिक्शन हो या कोई भी एडिक्शन हो, उसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। अगर उसका बेनिफिट नहीं है तो हम एडिक्टेड नहीं होंगे, राइट? अब ये बेनिफिट क्या हो सकता है? जैसे सुभाष ने बहुत अच्छे से ऐड किया इस पॉइंट को कि कहीं ना कहीं वो मेरी हैप्पीनेस कोशिएंट को बढ़ाता है। अनन्या ने बात कही कि वो डोपामिन रिलीज करता है, डोपामिन इंक्रीज होता है हमारी बॉडी के अंदर। इसका मतलब क्या होगा कि हम एडिक्टेड कब होते हैं? जब हम लाइफ में दुखी होते हैं, जब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, जब लोग हमारी बात मान नहीं रहे हैं, हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जैसे पल्लवी ने रेस किया पॉइंट कि 20s में नॉर्मली जब टीन एज में हम होते हैं उस टाइम पर एक पीयर प्रेशर की वजह से भी हम एडिक्शन में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? अगर किसी बच्चे की एक अपनी सेल्फ एस्टीम वीक है, उसका कॉन्फिडेंस कम है, उसकी सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, सेल्फ क्रिटिसिज्म ज़्यादा है, अब इस तरीके के जो बच्चे होंगे वो बहुत जल्दी पीयर प्रेशर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। क्यों इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? क्योंकि वो अपनी इस लो सेल्फ एस्टीम को, लो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं जॉब करता था आई यूज़ टू फ्रीक्वेंटली गो टू पेरिस, वंस इन अ क्वार्टर तो हमारा एक विजिट होता ही था पेरिस में, और जहाँ पे ग्लोबल मीटिंग्स होती थी आई यूज़ टू रिप्रेजेंट इंडिया और बाकी अलग अलग कंट्रीज़ के भी हेड्स आते थे। तो व्हेन वी हैव दोज मीटिंग्स, उसमें से कुछ लोग जो कि ड्रिंक नहीं भी करते हैं वो भी अपना ग्लास जो है ना, वाइन का ग्लास लेकर ज़रूर बैठते हैं। फिर वो उसको चाहे 2 घंटे में ख़त्म करेंगे, कोई पौधे पे डालेगा, कोई किसी तरह से करेगा। वाई वी आर डूइंग इट?
आप मीटिंग में बैठे हैं, आप अगर ड्रिंक नहीं लेते हैं तो नहीं लेते हैं। मैं कभी ड्रिंक नहीं लेता था, मैं हमेशा वो फेमस था कि वो उनको मुझे लोग देखते ही बोलते थे यार ये तो ही इज़ द वन हु विल गो विद द टोमेटो जूस। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और जब अपने को एक्सेप्ट नहीं करते हैं लेकिन ये बात किसी दूसरे को पता ना लगे, तो भी हम जो है एडिक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो अब ये कौन हमें समझ में आ गया। अब अनहैप्पीनेस के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे पल्लवी ने बताया, लैक ऑफ सेल्फ लव बताया, वर्क स्ट्रेस बताया, हैबिट की वजह से हमने बात किया है, पीयर प्रेशर की बात करी, वन एडेड अबाउट फ्रस्ट्रेशन है, So failures भी हो सकता है, हाँ जी, failures भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, फेलियर्स भी हो सकता है, राइट। और भी हम Fear of failure, like not actual failure, but the sheer fear that I'll fail. हाँ, फियर ऑफ फेलियर भी हो सकता है और फेलियर भी हो सकता है। देखो फेलियर की देखो डेफिनेशन क्या रहेगी, हम कैसे बोलेंगे फेलियर। एक बच्चा है जिसके 100 में से 40 नंबर आ गए, वो भी सेलिब्रेट करता है, और मेरे पास ये क्लाइंट आता है उसके 96 आते हैं, दुखी है। सो फेलियर की अपनी अपनी डेफिनेशन है हर एक की। हम हमारे रेफरेंस पॉइंट्स क्या है, कितने मार्क्स लाने से मुझे खुशी मिलेगी। अगर मैं उतने मार्क्स ले आता हूँ तो पार्टी टाइम, और नहीं लेके आता हूँ तो अनहैप्पीनेस। तो अनहैप्पीनेस के अभी हम अगर सोचेंगे इसी के ऊपर अगर हम बात करें तो आप बहुत सारे रीजंस ढूंढ सकते हैं जिसकी वजह से हम अनहैप्पी होते हैं लाइफ में। वो चाहे रिलेशंस की वजह से हो सकता है, हेल्थ की वजह से हो सकता है, एंग्जाइटी है, डिसीजंस लेने हैं हम नहीं डिसीजन ले पा रहे हैं, डिप्रेशन है, जब लगता है लाइफ में कोई भी सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग आ रही है। तो ये सारे रीजंस जो है वो अनहैप्पीनेस के रीजंस हैं। तो अब अगर हम इसके क्योर पर बात करते हैं तो आई थिंक अब तो सॉल्यूशन समझ में आता है, बहुत आसान है कि जैसे जैसे हम हैप्पीनेस की तरफ बढ़ते जाएंगे, अपने आप हमारी ये जो एडिक्शन है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। अभी शेयर किया कि उनको थोड़ा टाइम लगा और उन्होंने छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उस एडिक्शन से आपकी लाइफ में पेन्स बढ़ते जा रहे थे या पेन फील होने लगे थे। जैसे शुगर बहुत तो बढ़िया लगती है थोड़ा टाइम के लिए, जैसे अभी डॉक्टर अनामिका ने बात किया स्ट्रेस ईटिंग की, शुगर तो अच्छी लगती है, लेकिन धीरे 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 जब अगर वेट बढ़ने लगता है तो अब वेट का बढ़ना becomes a reason of bigger unhappiness than the craving of sugar। तो अब हमारी जो एडिक्शन है वो धीरे 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 कम होने लगेगी। फॉर दोज जिनके लिए वेट एक कंसर्न है, अपना एक फिजिक है, एक अपीयरेंस है, जिनके लिए ये चीज़ें कंसर्न है, लेकिन जिनके लिए ये कंसर्न नहीं है उनके जो है नहीं छूटेगी। मेरे पास एक क्लाइंट आते हैं वेरी ओवरवेट, और वो मुझे बताते हैं, कहते हैं कि जब उनकी शादी होने वाली, मतलब लड़की फाइनल हो गई है, डेट शादी की फिक्स हो चुकी है, विद इन 3 to 4 months टाइम उन्होंने 50-60 किलो वज़न जो है वो रिड्यूस कर दिया था। ये कहीं से ना बैकग्राउंड साउंड आ रही है, जहाँ से आ रही है उसको अपना माइक ऑफ कर लें। आई थिंक वंदना जी का माइक ऑफ है। आप वंदना अपना एक बार माइक ऑफ करके देखिए, शायद आपकी तरफ से बहुत नॉइज आ रही है। तो चल रहा है, बस मैं ट्राई करती हूँ। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो अब शादी है तो एक मोटिवेशन है कि वेट कम करना है, फ़ोटोज़ खींचेंगी, अच्छा लगना है, तो उन्होंने बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा वेट कम कर लिया, और उसके बाद अब वो मोटिवेशन ख़त्म हो गई, अब तो शादी हो चुकी है। अगेन बैक टू द सेम ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड हैबिट्स।
राइट। तो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या रहेगा कि हम जैसे जैसे अपनी हैप्पीनेस पर काम करते जाते हैं, हमारी जो एडिक्शन है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुछ केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि एडिक्शन के टाइम पर आपका माइंड कुछ सोचता नहीं है। जैसे एंजाइटी जिसको बहुत ज़्यादा होती है, मेरे पास एक लेडी आती थी, वो बोलती है कि सर वो अकेली रहती थी, मतलब देयर वाज नो वन इन हर लाइफ। अब वो अकेली रहती थी, अब जॉब करके जब घर आ गई, अब घर पे आने के बाद तो रात को अकेली है, कुछ नहीं है, तो शी यूज्ड टू से कि आई यूज्ड टू ड्रिंक टिल आई फॉल, राइट। तो जब हम किसी भी तरीके का सब्सटेंस लेते हैं, चाहे वो अल्कोहल है या वो ड्रग्स हैं, वीड्स आजकल बहुत कॉमन है, ये क्या करते हैं, ये हमारे कॉन्शियस माइंड को इनएक्टिव कर देते हैं। और जब एंजाइटी का मतलब क्या होता है, इट इज़ ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग कौन कर रहा है, मेरा तो कॉन्शियस माइंड है जो कि ओवर थिंकिंग करता है। थिंकिंग फैकल्टी इज बाय द कॉन्शियस माइंड, राइट। अब जब लगता है कि ये सोचने का प्रोसेस रुक ही नहीं रहा है, कितना भी कोशिश करते हैं लेकिन वो एंजाइटी, वो सोचने का प्रोसेस रुक ही नहीं पाता है, ऐसे टाइम में हम क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ ऐसा सब्सटेंस लेते हैं जो कि हमारे कॉन्शियस माइंड को रिलैक्स कर देता है या इनएक्टिव कर देता है। आप देखिए, जब हम लोग रील्स देखते हैं, राइट, उस टाइम पर भी क्या हो रहा है, हम कोई ऐसा कंटेंट उस टाइम पे नहीं देखना चाहते। अगर मैं बोलता हूँ हम 1.5 घंटा 2 घंटा स्क्रीन पे लगा रहे हैं, तो हम 2 घंटा कोई एक एजुकेशनल वीडियो देख सकते हैं। कुछ ना कुछ तो हम सब काम कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ तो नॉलेज हमें चाहिए, उतने टाइम में हम कुछ ना कुछ नॉलेज वीडियो देख सकते हैं, लेकिन वो नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मेरा जो कॉन्शियस माइंड है, इट वॉन्ट्स टू रिलैक्स। जैसे जैसे हमारा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, हमारा जो ब्रेन है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा टाइम काम करता है। सो अब क्या होता है, क्योंकि जब वो हाई फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, इट गेट्स मोर स्ट्रेस्ड, और जब स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली रिलैक्सेशन के लिए क्या होगा, हम किसी ना किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे जहां मेरा कॉन्शियस माइंड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट ना हो। अब देखते हैं धीरे धीरे हमारा जो वीडियोस या जो स्क्रीन पे जो हम लोग कंटेंट डालते हैं, उसका टाइम कम होता जा रहा है, अटेंशन स्पैन हमारा कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर हम कुछ भी नया सीखना नहीं चाहते हैं, कॉन्शियस माइंड को बिल्कुल फ्री छोड़ना चाहते हैं। जब ये रील्स नहीं होती थी, जब नए नए टीवी के ऊपर 150-200 चैनल्स आए थे, तो आई रिमेंबर लोग जो है अपना वो ये रिमोट हाथ में लेके बैठे हैं और बस चैनल पे चैनल स्क्रॉल करते चले जा रहे हैं। कहीं भी हम 5 मिनट 7 मिनट से ज़्यादा रुक कर देख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस माइंड उस पर्टिकुलर टाइम पर कुछ भी नया डेटा ग्रैस्प करने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है। कॉन्शियस माइंड हमारा काम करने के लिए रेडी बिल्कुल नहीं है, बिकॉज पूरा दिन जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहा है, इतना ज़्यादा वो इन्वॉल्व रहा है सोचने में, प्लानिंग में, एंजाइटी में, कन्फ्यूजन्स में। और आप देखिए कि जब हमें कोई मेजर डिसीज़न लेना होता है लाइफ में और हम कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं आता ये डिसीज़न ले वो डिसीज़न ले, यानी जब एंजाइटी ज़्यादा होती है, उस टाइम पर आप देखेंगे एडिक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वो एडिक्शन, अब हम समझ रहे हैं एडिक्शन, हम सिर्फ सब्सटेंस अब्यूज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हर तरीके का एडिक्शन, यानी हर तरीके की वो चीज़ जो हम जानते हैं कि नहीं करना चाहिए और करते हैं। वी आर कंपेल्ड टू डू दोज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, एंड दैट कैन बी एन एक्टिविटी लाइक कि डेली मंदिर जाना है। अगर मंदिर नहीं जाएंगे तो कुछ इनकम्प्लीट फीलिंग, कुछ एक लगेगा कि कुछ तो कमी है, जो हमारे एक दिमाग में कुछ ना कुछ उलझन, एक अटकाव बना रहता है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ टोटल पूरा। तो या तो हम उस समय जब सब्सटेंस अब्यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम अपने कॉन्शियस माइंड को इनएक्टिव कर रहे हैं, और दूसरे तरीके की एडिक्शंस वो हैं जो हैबिट से रिलेटेड एडिक्शंस हैं, यानी हम किसी ऐसे काम में, जैसे स्क्रीन टाइम का आज एडिक्शन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है।
तो हम किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं अपने आप को जहाँ पे मेरा कॉन्शियस माइंड कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन एक और फ़ायदा है स्क्रीन का। फ़ायदा क्या है कि अगर हम स्क्रीन भी नहीं देखेंगे तो फिर मेरा कॉन्शियस माइंड कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग में चला जाएगा। तो हमें अपने कॉन्शियस माइंड को एंगेज भी करना है और ऐसी जगह एंगेज नहीं करना है जहाँ पे कि उसको कुछ सीखना है या उसको सोचना है। तो वो क्या करता है, सिर्फ स्क्रोलिंग हम स्क्रोलिंग करते चले जाते हैं, राइट। तो आई थिंक वंदना आपने शायद क्वेश्चन भी पूछा था कि एडिक्शन है और बहुत साल से अगर एडिक्शन है तो क्या ये ठीक हो सकती है। काफ़ी हद तक चांसेस हैं ठीक होने के। अगर पहली चीज़ तो उनकी जिनको एडिक्शन है उनकी इंटेंशन होनी चाहिए ठीक करने की। कई बार मेरे पास केसेस आते हैं, वाइफ लेकर आ रही हैं हस्बैंड को कि सर ये तो बहुत स्मोक करते हैं, इनकी सिगरेट छूट जाएगी। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर आप चाहती हैं और हस्बैंड नहीं चाहते हैं तो नहीं छूटेगी। काउंसलिंग प्रोसेस हो, थेरेपीज हो, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू इम्प्रूव। अगर हस्बैंड की विलिंगनेस है स्मोक छोड़ने की तो बिल्कुल छूट जाएगी, राइट। तो या कामना बहुगुणा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? यस, कामना बहुगुणा आपने जी सर गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। मेरा नाम संदीप बहुगुणा है। मैं आपके पास आ चुका हूँ पहले, आई थिंक 2 या 3 सेशंस हम कर चुके हैं। पता है। आप अपना वो कैमरा ऑन कर सकते हैं। जी, आई होप यू कैन सी मी नाउ। यस, हाय हाय हेलो सर। हाय, हाउ आर यू? So, my daughter is in 10th standard. We admitted her in a Gurukul, Kanya Gurukul, and she's in Kurukshetra. She's back home nowadays for Diwali holidays. She has to go back, supposed to go back on 27th. But उसका फोन का एडिक्शन इतना ज्यादा है कि मतलब शी इज ट्राइंग टू फाइंड एक्सक्यूजेस नॉट टू गो बैक टू हॉस्टल। वो जून में आई थी तब भी उसका सिनेरियो ऐसा ही था। We were doubtful should we bring her on holidays or not, but we decided that we'll bring her so that we find out if there are any changes in her or not. In the first few days she shows those changes, but you know, as the time goes by, she gets more into using the phone. So should we take away the phone completely, because then she gets into aggression and behavioral issues with us. So I am not opinion that we should take it completely away, but I don't know, my wife says no, then she can child can take. She's about 16 years of age. And so we are in a situation where what should we do? The explanations that you are giving, they completely fit into what you have explained. They fit into these kind of behaviors in children. तो अभी वो हॉस्टल तो जाने वाली है? She's supposed to go on 27th, but she wants to extend it. Sometimes she says I'll stay till first or second, and she says I'll stay till 9th. We'll send her back, of course, and not to spoil the atmosphere or things. We are just keeping the phone with her. But if I go with my strictness, I can take away the phone in minutes. I mean, I can do that, but I'm not doing it just to keep. Not to spoil things for the moment. As parents हम पावरफुल तो होते हैं, अथॉरिटी होती है, हम कर तो सकते हैं जो चाहें। कभी कभी सही हो सकता है, वो किसी सिचुएशन में किसी केस में ये बात ठीक हो सकती है, लेकिन हमें ये देखने की ज़रूरत है कि आप बच्चे को यहाँ तो आप रोक सकते हैं या ले सकते हैं फ़ोन, लेकिन हॉस्टल में जाने के बाद
वो अपना टाइम कहीं ना कहीं तो वेस्ट करेगा ही करेगा। तो जब तक बच्चे के अंदर एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, वो जो रीजंस हैं जो बच्चे को दुखी कर रहे हैं फॉर वट एवर रीजंस आर देयर, जब तक हम उन रीजंस को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक हम मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो मोटिवेट तो नहीं होगी उसको छोड़ने के लिए, और मोटिवेट नहीं होगी तो फिर ये है कि वो मोबाइल नहीं देखेगी तो कुछ और ऐसा करेगी जो कि आप नहीं चाहते हैं। अब एज पेरेंट्स हम ये हमारा प्राइमरी चाहना क्या होता है कि बच्चा अपनी हेल्थ पर, अपनी पढ़ाई पर फोकस करे, राइट। मोबाइल ले हम उससे मोबाइल ले लें और वो अगर फिर भी पढ़ाई पे फोकस नहीं करता है तो हमारा मोबाइल का ले लेना भी हमारा पर्पस तो सॉल्व नहीं कर रहा है। और बच्चा जो है वो इस एज में आके इतना ज़िद्दी या उतना तो हो जाता है कि भाई आप क्या समझते हो, मोबाइल ले लोगे तो मुझे पढ़ा लोगे। तो आई नो That is it's a crucial case situation. that is exactly what it is. That's why I have a doubt that she was here for summer vacations 1 month. It was supposed to be a 9 days vacation, but we may allow to extend it, because her friend's birthday falls on 28th, so 26 we were supposed to take her back, but as she says, till first maybe she will be dropping her back on next Saturday, Sunday. So I understand what you're saying, that that is the reason we have not taken away the phone from her. And these are kind of addictions. Not just us, but maybe a lot of parents will be facing. So one more thing is that should we, instead of having this kind of situation, should we avoid giving, because the children, they don't have some children have self-control, a lot of children have self-control, some may not have it, some maybe it's a weakness. Maybe she sees that, as her father, I am busy in, working because my working conditions are put me to work. But should we not give her phone? Because putting limitations is a bit difficult. In hostel, there is no phone for them. So they are allowed 7-8 minutes a week to call us. That's all. No phone, no hand phone, no handsets, no mobile phones. Right. So should we not give the phone when they come on vacation, or when we go out and meet them for a day trip or a day? Should we avoid giving the phone? Maybe they do tantrums, maybe they do whatever. Should we just avoid giving the phone? That is a better solution. So that it doesn't start and it doesn't reach this stage. Will that be a solution? देखिए, लाइफ में ना स्ट्रेट सॉल्यूशंस कभी नहीं आते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का कोई एक फिक्स सॉल्यूशन नहीं है जो हर इंसान के साथ काम करेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि लाइफ जो होती है ना, इट ऑलवेज फॉलोज अ पैराबोला पाथ। पैराबोला पाथ का मतलब क्या होता है कि जब कुछ फेज़ ऐसा होता है जब हम इनपुट इंक्रीज़ करते हैं तो आउटपुट इंक्रीज़ होती है। हमें एक वैलिडेशन मिलता है एक्सपीरियंस से, हम इनपुट को और इंक्रीज़ करते हैं, आउटपुट और इंक्रीज़ होती है। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, अब हम इनपुट को और इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन जैसे ही वो मैक्सिमम पॉइंट पहुंच जाएगा अब वो डाउनफॉल पे आना शुरू हो जाता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि लाइफ में एक बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके क्वेश्चन को मैं बात करता हूँ, मैं एक जनरल एक बात में कहता हूँ। कई पेरेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट रहना चाहिए या लीनियंट रहना चाहिए, राइट। बहुत सारे आप जितने भी पेरेंट्स हैं, आप लोगों के मन में भी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता ही होगा कि लीनियंट रहना चाहिए बच्चे के साथ या हमें स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। और मैं ये बोलता हूँ कि ये दोनों ही जो हैं अपने आप में पूरी तरह से सही सॉल्यूशंस नहीं हैं। स्ट्रिक्टनेस के भी अप टू अ सर्टेन लिमिट फ़ायदे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना उसके नुकसान आने शुरू हो जाते हैं। कुछ टाइम लीनियंसी का फ़ायदा होता है, लेकिन ज़्यादा लीनियंट होने से भी उसके भी नुकसान आने शुरू हो जाते हैं। हमारा कोई भी ऐसा बिहेवियर नहीं हो सकता है जो कि हम बोले एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर इंक्रीज़ करता हो कि आप इनपुट बढ़ाते जाइए, आउटपुट इन्फिनिटली बढ़ती जाती है। ऐसा कभी नहीं होता है लाइफ में।
तो इसलिए क्या होता है कि आई ऑलवेज रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ इन रिप्लाइंग टू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि देखने में तो लगता है कि दीज आर वेरी स्ट्रेट क्वेश्चंस, लेकिन आंसर्स आर नॉट सो स्ट्रेट। क्योंकि अगर आप बच्चे को इस टाइप की ये जो फैसिलिटीज़ हैं, मोबाइल का आप बता रहे हैं, लेकिन अभी जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बर्गर्स हैं, ये भी तो एडिक्शन में ही आता है। अब यहाँ भी पेरेंट्स ये बोल सकते हैं कि अगर हम बच्चे को कोल्ड ड्रिंक्स ही ना दें, कभी कभी हम उसको पिज़्ज़ा ही खाने के लिए ना दें, कभी हम उसे जंक फूड ना दें, बट विल इट बी अ गुड पेरेंटिंग? क्योंकि बच्चा जब अपने समाज में जाएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठेगा, उसको ऐसा लगेगा जैसे कि वो तो एक सॉर्ट ऑफ बैकवर्ड है। उसे यही नहीं मालूम कि आज कौन कौन से बढ़िया रेस्टोरेंट्स हैं, कौन कौन सी डिशेस जो हैं वहाँ पर मिलती हैं। तो वो भी अपने आप को जो है वो फिर आउट ऑफ दी प्लेस फील करने लगेगा। सो स्ट्रेट सॉल्यूशंस नहीं है। हर केस, हर जो एक इंसिडेंस है, या हर जो एक फैमिली है, बच्चा है, इन सबका एक जो सॉल्यूशन है, जिसका जो जैसे कहते हैं ना कि जो एक हमें पीक पॉइंट जो हमें लेकर आना है, जहाँ पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिले, जहाँ हम एक बैलेंस कर सकें कि कहाँ हमें लीनियंट होना है और कब हमें स्ट्रिक्ट होना है। जब हम इन दोनों जो हमारे अपोजिट पोल्स हैं, जब हम इनमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना सीख जाते हैं, दैट इज़ द राइट अप्रोच इन लाइफ। तो कभी मोबाइल ना देना भी सही सॉल्यूशन हो सकता है, और कभी मोबाइल देना भी सही सॉल्यूशन हो सकता है। बट गोइंग टू द रूट कॉज, हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि बच्चे की लाइफ में क्या रीजंस हैं जो उसको अनहैप्पी कर रहे हैं, और जब हम उन रीजंस को क्योर करेंगे, तब उसके अंदर एक मोटिवेशन आएगा अपनी एडिक्शंस को दूर करने के लिए। अभी आप एज पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ें इम्पोज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द अथॉरिटी दैट यू हैव, लेकिन कुछ टाइम के बाद जहाँ बच्चे बड़े हो जाएंगे, अब तो वो अथॉरिटी आपके पास रहेगी नहीं, तब तो आप अपनी इच्छाएं उसके ऊपर इम्पोज कर भी नहीं पाएंगे। सो राइट पेरेंटिंग इज बेसिकली टू मेक अ चाइल्ड फील रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ग्रोथ, फॉर हिज सक्सेस इन लाइफ। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं हम कर पाते हैं, तो फिर माइक्रो मैनेजमेंट आप कुछ भी करेंगे, एक स्टेज के बाद वो गलत रिजल्ट लेकर आने वाला है। Thank you. Good. So, anyone else wants to add something or say something? या कोई क्वेश्चंस अगर है आपके मन में? सर पेरेंटिंग को लेकर तो सर आपने बोल दिया, बट मेरे जैसे केस में लाइक जो मोस्ट ऑफ द लाइक स्टूडेंट्स है, या फिर आपने जो एक अलग सा ग्रुप बनाए हैं, उनके लिए सर क्या ऐसा सोल्यूशन है? क्योंकि मैं भी समवेयर, मुझे भी एक स्क्रीन एडिक्शन लग गया था बीच में कोविड के टाइम में, एंड इवन स्टिल टुडे। आपने सर एक सेशन किया था जहाँ पे आपने पर्सनली कहा था कि लाइक मेरा स्क्रीन टाइम कितना रहता है और मैं क्या क्या कंटेंट देखता हूँ। तो अभी तो सर ऐसा है कि नो डाउट अभी भी मेरे पास सोशल मीडिया बहुत सारे हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम, बट मैंने उसको सर लाइक छुपा दिया हूँ, हाइड कर दिया। लाइक मुझे भी खुद नहीं पता, तो जब भी मैं फोन खोलता हूँ तो पता चलता भी नहीं कि ये ऐप्स है भी, ऑल्दो इंस्टॉल्ड है, बट उसे मैंने एक तरीके से हाइड करा दिया, ताकि पता चले कि लाइक इसके बिना मैं रह पाऊँ कि नहीं। एंड मुझे लगता है स्लोली ये इफेक्ट तो कर रहा है, मगर सबका जो थिंकिंग है वो एक जैसा तो नहीं है। तो ऐसे केस में भी एज ए स्टूडेंट एंड एज एन यंग वन, क्या ऐसा सोल्यूशन हम दे सकते हैं स्टार्टिंग से कि हम इसको कंट्रोल में ला सके, ताकि वो ज़्यादा एक्सट्रीम ना चले? देखो, इसके लिए मैं आपको एक जनरल सॉल्यूशन बताता हूँ, जो कि स्पेसिफिक हो जाएगा केस टू केस, या इंसान के हिसाब से वो सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट स्पेसिफिक हो सकता है। जनरल चीज़ मैंने आपको क्या बताया, जब मेरा कॉन्शियस माइंड थक जाता है, तो उसका ये एक रिलैक्सेशन का तरीका है। कोई भी एडिक्शन जो है वो हमारे कॉन्शियस माइंड को रिलैक्सेशन देती है, राइट? अब हम अगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं जहाँ से मुझे कम टाइम में ज़्यादा रिलैक्सेशन महसूस होती है, या मैं एक्सपीरियंस कर पाता हूँ, तो वो हमारी एडिक्शन को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब हमें ये देखना होगा कि अपना जो माइंड है वो क्यों थकता है। आपके पास ओवरलोड है, वर्कलोड ज़्यादा है, इसलिए आप थक जाते हैं, तो आपकी टेक्निक्स डिफरेंट होंगी रिलैक्सेशन की।
अगर आपके मन में फियर हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, जिसकी वजह से एंग्जाइटी रहती है, कन्फ्यूजन्स रहते हैं, डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, आई एम रॉन्ग है आपकी पर्सनालिटी का पार्ट, तो फिर क्या होता है, एक सेल्फ डाउट अगर रहता है तो फिर रिलैक्सेशन की टेक्निक्स हमारी डिफरेंट हो जाएंगी, राइट? तो सॉल्यूशन क्या है एडिक्शन को ख़त्म करने का? कि अपने लॉजिकल माइंड को हम रिलैक्स करना सीख जाए, और जैसे जैसे मेरा लॉजिकल माइंड रिलैक्स होता जाएगा वैसे वैसे हम एडिक्शन से दूर होते चले जाएंगे, या उससे बड़ा पेन आ जाए लाइफ में। जैसे अभी किसी ने बात किया था कि मैं शुगर ले रही थी पहले, लेकिन उसके बाद जो है फिर मैंने छोड़ दिया। लोग स्मोकिंग करते हैं, जिस दिन डॉक्टर बोल देता है कि भैया अब अगर एक सिगरेट भी पी तो फिर अब ज़िंदा नहीं बचोगे, अब ज़िंदा रहना ये ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है, आपकी स्मोक इमीडिएटली छूट जाती है। बहुत सारी लेडीज़ ने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, आप इस बात को समझ पाएंगी कि काफ़ी टाइम हम ऐसा सोचते हैं कि चलो कल से रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिटनेस पर ख्याल रखेंगे, राइट? लेकिन हम रोज़ उसको टालते चले जाते हैं। लेकिन सोचिए आप पार्क में हैं, मेट्रो में हैं, और कहीं पे एक बच्चे ने आपको अगर बोल दिया ना कि आंटी थोड़ा रास्ता दे दो, अब जिस दिन बच्चे ने आंटी बोल दिया अगले दिन आप पार्क में होते हैं, राइट? तो या तो उससे बड़ा पेन हमारी लाइफ में आए, एक रीज़न ऑफ अनहैप्पीनेस या तो हमारी लाइफ में आए, इट्स ऑल कंपैरेटिव। जो आज मुझे रीज़न ऑफ अनहैप्पीनेस है, या तो उससे बड़ा रीज़न ऑफ अनहैप्पीनेस आ जाए जिसकी वजह से वो एक मोटिवेटर बन जाए इसको छोड़ने का, और या फिर हम अपने माइंड को किसी ना किसी रिलैक्सेशन टेक्निक का इस्तेमाल करें। मेडिटेशन वर्ड में जान के नहीं यूज़ कर रहा हूँ, कि आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि फिर मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन काम कर सकता है, लेकिन मेडिटेशन में इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप पहले ही सैड हैं या डिप्रेशन में हैं तो मेडिटेशन विल नॉट बी अ सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप एंग्जाइटी है, ओवर थिंकिंग है, तो मेडिटेशन कैन बी वन ऑफ द वेज टू रिलैक्स योर माइंड इन अ लेस अमाउंट ऑफ टाइम। तो मेडिटेशन जो है वो थोड़ा रिस्की हो जाता है, तो अगर आपको करना है स्टार्ट तो कभी एक्सपर्ट की गाइडेंस में करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इन जनरल आई वुड से कि हम अपने माइंड को रिलैक्स करने का तरीका सीख लें, और वो डिपेंड करेगा इस पर कि मेरा उसको एग्जॉस्ट होने का रीज़न क्या है, राइट? डज इट आंसर अनुराग? हाँ सर एक और सवाल भी है। आप बहुत टाइम से आपने काउंसलिंग अभी कंटिन्यू नहीं किया है, तो उसको कंटिन्यू करो आप अभी। हाँ सर ठीक है, हाँ बताएं। सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि नो डाउट एडिक्शन ये टर्म अपने आप में एक बहुत खराब है, मगर बहुत लोग सर ऐसे हैं जो एडिक्शन को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में ले जाते हैं, लाइक बहुत एक्सट्रीम में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक टर्म का कोई ना कोई एक बुरा साइड भले ही होना हो, लेकिन उसका एक अच्छा साइड भी होना चाहिए। तो सर से ये सवाल मैं सिर्फ आपसे नहीं, मतलब इस मीटिंग में जो भी है, जितने भी एक्सपीरियंस है, मेरा क्वेश्चन ये कि इज देयर एनी गुड साइड ऑफ एडिक्शन जिससे हमें किसी भी तरीके का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मिल सकता है? एंड सर्टेनली आई हैव फाउंड वन थिंग, क्योंकि मैं सर एक एथलीट भी हूँ, एंड मुझे लगता है कि ओवर द इयर्स में जितना लाइक खेलता हूँ, ये खेलना सर एक तरीके से किसी के लिए हॉबी हो सकता है, किसी के लिए एक्टिविटी हो सकता है, बट समवेयर ये मेरे लिए एक एडिक्शन जैसा हो चुका है। लाइक रोज खेलना, एक दिन अगर मैं खेलता भी नहीं हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ इनकम्प्लीट जैसा हो गया। तो दैट इज वन सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव एडिक्शन जो मैं प्रेफर कर सकता हूँ। इसके अलावा सर और क्या ऐसे सॉल्यूशन है? लाइक यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन रेज करता हूँ, आपके पॉइंट पे थोड़ा बाद में आते हैं। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन रेज करता हूँ, वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी हैबिट्स एंड एडिक्शन? हैबिट्स भी तो ऐसी है ना जो रोज़ करते हैं। एक आदमी है जो रोज़ योगा एक्सरसाइज करता है, रोज़ वॉक करता है, रोज़ जिम जाता है, न्यूट्रिशियस डाइट खाता है। सुभाष जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने काफ़ी वेट शायद आपने लूज़ किया है, राइट? तो ऑब्वियसली अगर उन्होंने वेट लूज़ किया है तो कुछ तो उन्होंने हेल्दी हैबिट्स डेवलप की होंगी और उसको कंसिस्टेंटली भी किया होगा। तो क्या हम किसी भी कंसिस्टेंट हैबिट को एडिक्शन बोल देंगे?
सर इसी का तो मुझे क्लैरिटी चाहिए। हाँ, तो जो आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, नाउ व्हाई डू यू कॉल दैट स्पोर्ट्स इज एन एडिक्शन? सर क्योंकि शुरू से हाँ सर मैं कह रहा हूँ स्पोर्ट्स कैन ऑल्सो बी अ गुड हैबिट. तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी सारी हैबिट्स जो हैं हम उसको एडिक्शन में ही कैटेगराइज करेंगे, नहीं. राइट, कुछ हमें हेल्दी हैबिट्स, कुछ कंसिस्टेंसी लाइफ में रखनी ज़रूरी है. आप एक टाइम टेबल बना के उसको फॉलो करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को डेली करते हैं, तो ये तो अच्छी हैबिट्स हैं. इसको एडिक्शन की कैटेगरी में तो हम नहीं डालेंगे. Doctor, here I would like to add something. Yeah. I think like playing या going to the gym is all a good habit. लेकिन किसी भी चीज का overdo करना would be an addiction. क्योंकि it is going to hamper us. आप मतलब बहुत ज्यादा खेल रहे हो, सुबह शाम दोपहर एवरी टाइम खेल रहे हो, तो कभी ना कभी आपका मसल फटीग होगा, कभी ना कभी कुछ wear and tear होगा. So that would be the part, that would be the repercussion of the addiction. राइट. So, कोई भी चीज एक लिमिट में अगर होती है, like I was talking about sugar, अगर मैं एक लिमिट में खा रही हूँ then it is not an addiction. अगर मैं ओवर लिमिट हो गई है वो चीज जो मेरी हेल्थ को भी अफेक्ट कर रही है, या any which ways it is going to affect, that would come under addiction. This is what I think. Right. It's a very nice point that you have raised, Vartika. जब हम लोग सक्सेस मॉड्यूल में काम करते, जिन लोगों ने मेरे साथ सक्सेस मॉड्यूल पर डिस्कशंस किया है, और जब हम टाइम मैनेजमेंट और प्रोएक्टिव अप्रोच के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर हम ये समझते हैं इस पॉइंट को कि कोई भी एक्टिविटी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है. वो डिपेंड करता है कि हम किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, हमारा गोल क्या है उसको करने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज, अगर हम 1 घंटा 1.5 घंटा अगर हम फिजिकल फिटनेस पर देते हैं, तो ये हमारे लिए एक अच्छा, एक पॉजिटिव गुड हैबिट हो सकती है. लेकिन कोई आदमी 4 या 5 घंटे अपना फिजिकल एक्सरसाइज वर्कआउट करता आ रहा है, तो ये जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक हेल्दी हैबिट में काउंट किया जाए. लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है, कोई इंसान ऐसा है जिसको अपना करियर जो है स्पोर्ट्स में बनाना है, अब उसके लिए वो 5 घंटे एक्सरसाइज करना विल बी अ गुड थिंग फॉर हिम. लेकिन किसी ने अपना करियर, एक एकेडमिक करियर चूज़ किया है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, एडवोकेट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, राइट, और वो अगर 4 घंटे 5 घंटे अगर एक्सरसाइज करता है, तो ऑब्वियसली दैट विल नॉट बी अ गुड हैबिट और अ पॉजिटिव हैबिट. सो कोई भी हैबिट जो है, वर्तिका हैज रेज अ वेरी नाइस पॉइंट, कि जो भी कोई एक हैबिट है जो हम ले रहे हैं, वो एक लिमिट, अब ये लिमिट जो है, अब हमने वर्ड तो यूज़ कर दिया कि जो एक लिमिट में रहती है, लेकिन ये लिमिट कौन डिसाइड करेगा? क्या मेरी लिमिट और अनुराग आपकी लिमिट एक हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर. हमारे प्रेफरेंसेस अलग हैं, हमारे एम्बिशंस अलग हैं, हमारी गोल्स अलग हैं. तो वो जो लिमिट है, वो लिमिट कोई भी एक्सटर्नल चीज़ या कोई दूसरा इंसान हमारे लिए सेट नहीं कर सकता है. ये लिमिट्स हमें सेट करनी है, और वो डिपेंड करता है हमारे गोल्स पर, जिसको हम लोग बात करते हैं, जिन लोगों ने आप अटेंड किया है, जब हम लोग प्रोएक्टिव और रिएक्टिव अप्रोच के ऊपर बात करते हैं. प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब ही ये होता है कि हम अपनी लिमिट्स को डिज़ाइन करते हैं, राइट. क्योंकि जैसे वर्तिका ने कहा कि मसल फैटीग होता है, मसल फैटीग हो सकता है, लेकिन टाइम तो लॉस हो ही रहा है. अगर आप सारा दिन खेलते रहते हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास टाइम तो लिमिटेड रिसोर्स है ही है. तो अगर मसल फैटिंग नहीं भी हो रहा है, तो भी हमारा टाइम तो यूज़ हो रहा है उसके अंदर. क्या हम सही अमाउंट ऑफ टाइम उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, उस एक्टिविटी के लिए? अगर हम उस एक्टिविटी के लिए सही टाइम या एक लिमिट में टाइम यूज़ नहीं कर रहे हैं, और लिमिट हमारा अपना गोल डिसाइड करता है, देन दैट विल बी अ नेगेटिव हैबिट. Right, so does it make it clear now? हाँ सर, मतलब एक
लिमिट तक मतलब लाइन क्रॉस हुआ मतलब देन इट्स अ लॉस, भले ही वो एक अच्छा चीज क्यों ना हो। अच्छी और बुरी कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ डिपेंड करता है हमारी नीड्स के ऊपर। ठीक है सर। क्लियर? राइट। सो आई होप हम लोगों ने काफ़ी अच्छी इस पे डिस्कशन किया है, काफ़ी टॉप पॉइंट्स हम लोगों ने इसमें कवर किए हैं, आप सबके भी बहुत अच्छे आइडियाज़ आए हैं। सो इज दिस टॉपिक क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस वंदना। जी वंदना बताएं। सर जैसे आपने कहा कि अगर 30-35 साल पुराना भी एडिक्शन है वो भी क्योर हो सकता है, तो उसके जो आपने बताए थे तरीके, थोड़ा सा उसको एलॉबरेट कर सकते हैं? और ये भी है कि जैसे नॉट ओनली ऑफ अल्कोहल, जैसे कुछ आगे एक्सटेंड तक हो, हेरोइन, कोकेन, चरस, इनफैक्ट यहाँ तक हो, और 2-4 आदमी ट्रीटमेंट भी करा चुका है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करा चुका है, उस बंदे को समझ भी है, ही वांट्स टू क्विट, but after 2 or 3 months he repeat the same things. Maybe he knows that it's wrong, but it's not, he's not able to quit those things. So is there any hope? बिल्कुल होप है। एक बार अगर वो चाहें तो मेरे साथ अलग से बात करें और एक बार मैं उनकी डिटेल्स में लेता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम कोई केमिकल लेते हैं, जैसे ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो उसका इम्पैक्ट है, टोबैको भी अगर लेते हैं तो वो फिर हमारे ना बॉडी पर भी इम्पैक्ट करने लगता है। हार्मोन्स पे हम तो जब वो बॉडी पर इम्पैक्ट करने लगते हैं, क्योंकि कोई भी हम चीज़ है एकदम से छोड़ देते हैं फिर उसके विड्रॉल सिम्टम्स भी होते हैं। बॉडी जब किसी केमिकल के इन्फ्लुएंस में होती है तो हम उसको जैसे कहते हैं ना कि फ्रीक्वेंसी को मिनिमाइज तो कर सकते हैं, लेकिन ज़ीरो कई बार नहीं भी पॉसिबल होता है ज़ीरो कर पाना। हाँ, कम हो सकता है। वो स्पेसिफिक केस टू केस डिपेंड करे, मतलब वो चीज़ जनरल हम इसमें नहीं कवर करें। जनरल पॉइंट सिर्फ यही है कि उनके अपने क्या रीजंस हैं अनहैप्पीनेस के, उनको दूर करने की कोशिश करें, रिलैक्स करने के लिए कुछ एम्बिशन, हाँ, उसको कोई और पर्पस खोजा जा सकता है लाइफ में, इस तरह कुछ। और बाकी ये है कि स्पेसिफिक तो फिर मैं तभी मैं आंसर कर पाऊंगा व्हेन आई विल हैव हिज डिटेल्स, तो फिर हाँ, उससे बात कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है। बाकी ये है कि अगर 30-35 साल पुराना भी एडिक्शन है तो छूट जाता है, ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकता। बट इट टेक्स टाइम। इट टेक्स टाइम, ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम। अच्छा, जैसे एकदम से नहीं छूटेगा क्योंकि बॉडी फिर वो इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाती है कि आप चाहे कि एक दिन में आप अलग झपक के हो जाए, क्योंकि वो उसकी प्रोलॉन्गिटी देती है। ठीक है सर, ओके, राइट, थैंक यू। गुड। सो इट वाज अ नाइस डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक टुडे, वेरी बेनिफिशियल। वेरी बेनिफिशियल टू एवरीवन। सो कोई और इसमें पॉइंट्स आप लोग ऐड करना चाहते हैं, क्वेश्चंस हैं अगर आपके, तो बात करते हैं इस पे। सर ये रिलैक्सेशन टेक्निक्स क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? जैसे आप बोले मेडिटेशन तो नहीं, मतलब if you're in a good state I'll get it with that. नैप, जो शॉर्ट नैप्स होती हैं वो हमें अच्छा रिलैक्स कर जाती हैं, है ना। वॉक कैन बी अ रिलैक्सेशन टेक्निक, बट हमेशा नहीं होगा। उन लोगों के लिए होगा जो कि डेस्क वर्क कर रहे हैं, ज़्यादातर मेंटल लेवल पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर जो काम कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा स्ट्रेचिंग, वॉक करना रिलैक्सेशन हो सकता है। स्पेंडिंग टाइम विद नेचर कैन बी अ बिट रिलैक्सिंग, राइट। एक शॉर्ट नैप्स दिन में ले लेते हैं, दैट कैन बी वेरी रिलैक्सिंग। और बाकी जो है फिर केस टू केस स्पेसिफिकली हमें देखना पड़ेगा उसमें। Yes, thank you. Very nice session today, sir. Great. So it was very participative today. So अगर और कोई शेयरिंग्स नहीं हैं, कोई और क्वेश्चंस नहीं हैं, तो फिर आई गिव दिस प्लेटफॉर्म टू मिस्टर ब्रज पांडे, जिन्होंने कहा था कि लास्ट में वो अपनी कविता के साथ इस सेशन को कंक्लूड करना चाहेंगे। I have a thing to say. हाँ अनन्या बताएं। I met a guy, he was talking to me, he was like मैं दिन के 25 हुक्के पी सकता हूँ पर मुझे ना एडिक्शन नहीं है। तो देखिए और सजनों, डिनायल में जी ऐश करें। गुड, ठीक है। उनको जो है वो देखो, जब हमारा ईगो होता है ना, ईगो क्या होता है कि मैं दूसरे से ज़्यादा बेटर हूँ। अब शायद उनको यही औरों को दिखाने में मज़ा आता होगा, हैप्पीनेस मिलती होगी कि मैं देखो इतना पीने के बाद, इतने हुक्के पीने के बाद भी जो है मैं
स्टेबल रहता हूँ और मुझे इफ़ेक्ट नहीं होता है। देखो, मैं तो जो बताया आपको एक बहुत आउटलाइन मैंने दी है ना? जब हम हैप्पीनेस की बात करेंगे, तो हैप्पीनेस तो आदमी को अपने-अपने तरीके से अलग-अलग किसी भी तरीके से आ सकती है। जहाँ मेरा ईगो सैटिस्फाई होगा, वो हैप्पीनेस का कारण बन जाएगा। मैं पूरी बॉटल पी जाता हूँ दारू की और पैर नहीं लड़खड़ाते। अब ये भी उस किसी का ईगो सैटिस्फाई करने का हो सकता है, और मेरे बराबर तो कोई नहीं पी सकता है, ये भी ईगो सैटिस्फैक्शन का तरीका हो सकता है। बट ये भी तरीका जो है कहीं ना कहीं उसको हैप्पीनेस दे रहा है। यानी ऐसे इंसान के पास अपनी कहीं ना कहीं एक आई एम रॉन्ग या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसको मालूम है कि मैं किसी भी पॉजिटिव चीज़ को करके शायद वो रिकॉग्निशन मैं नहीं पा सकता हूँ जो कि मैं कुछ गलत चीज़ करके आसानी से वो मुझे रिकॉग्निशन मिल जाती है। सो व्हेन यू गेट अ रिकॉग्निशन, ईगो गेट सेटिस्फाइड, तो वही हमारे लिए रीज़न ऑफ हैप्पीनेस होता है। हम एडिक्ट होने, जिस चीज़ की भी मुझे एडिक्शन होती है, वो कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड को हैप्पीनेस दे रही है। चाहे वो मोमेंट्री हैप्पीनेस है, चाहे वो शरीर को नुकसान पहुंचाकर वो हैप्पीनेस मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एडिक्शन हमारी हैप्पीनेस को इंक्रीज करता है, चाहे मोमेंटरीली ही करता हो। अब वो हर इंसान के, हर पर्सनालिटी का, हर इंसान का जो एक तरीका होगा हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करने का, या हैप्पीनेस को मानने का, लेने का, वो अपना अपना अलग होगा। इसलिए वैरायटी ऑफ एडिक्शंस विल बी देयर, राइट। चलिए, सो ओवर टू मिस्टर ब्रज पांडे। अब आपकी कविता सुनते हैं। सर कविता नहीं है, बस 2 लाइनें लिखा था। एंड दैट शुड नॉट बी टेकन कि अगर कोई स्मोक ड्रिंक कर रहा है तो वो स्टॉप कर रहा है, वो एक गलत चीज है। आई एक्सेप्ट दैट, लेकिन लाइनें लिखा था तो मैं शेयर कर रहा जी हूँ प्लीज। कि लोग पीते हैं कि कुछ देर अपना गम भुला सके, कुछ देर अपना गम भूलकर खिलखिला सके। हम पीते हैं कि थोड़े होश में आ सके, जिंदगी का नशा जो बहुत चढ़ा हुआ है उसे थोड़ा उतार सके, आपसे थोड़े अदब से पेश आ सके। वाह, थैंक यू। वाह, वेरी गुड, गुड, थैंक यू सर। राइट। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं। अगले हफ्ते का टॉपिक क्या है हमारा? है पेरेंटिंग है सर, नेक्स्ट 2 नवंबर का। हाँ, नेक्स्ट वीक हमारा पेरेंटिंग का है, और जिसको ब्रज पांडे जो है वो इसको लीड करेंगे। राइट मिस्टर पांडे? यस सर। राइट। और आई एम श्योर ये अगला सेशन भी जो है बहुत ही पार्टिसिपेटिव होने वाला है, क्योंकि पेरेंटिंग से रिलेटेड बहुत लोगों के एक्सपीरियंसेस भी हैं और कन्फ्यूजन्स भी हैं। राइट। सो नेक्स्ट फुल वीक बी प्रिपेयर्ड फॉर योर experiences, questions, sharing your wisdom on this platform। और नेक्स्ट वीक फिर हम लोग बात करेंगे कामना, मिस्टर बहुगुना एंड अनुराग, यू वांट टू से? या मिस्टर बहुगुना बताएं, आप कुछ कहना चाहते हैं? मिस्टर बहुगुना या अनुराग, आप बताएं तब तक। सर ये थोड़ा सा मेरे लिए ऑफ टॉपिक हो सकता है, तो क्या मेरा रहना जरूरी है नहीं, अभी के लिए एज ए स्टूडेंट? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ। सर हाँ जी सर, आई वांट टू ऐड वन थिंग। वो कह रहे हैं उनके लिए ऑफ टॉपिक हो रहा है। आई एम मैरिड बट आई एम नॉट हैविंग एनी चाइल्ड, एंड आई एम बीइंग द कन्वीनर ऑफ दिस chat, and I would be participating a lot in this, because I have seen a lot of people how they treat their children. ओके। सो अनुराग, आपके लिए इनका पॉइंट मैं समझ रहा हूँ। तो अनुराग, आपके लिए भी ऑफ टॉपिक नहीं होगा। आप क्या फील करते हैं वो कम से कम सब पेरेंट्स के लिए एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो सकता है। मैं समझ पाता हूँ, क्योंकि अभी मेरा सब पेरेंटिंग एज आया ही नहीं है। हाँ, मैं तो समझ, ये लेकिन आप
कि पेरेंट्स आपके साथ बिहेव करते हैं और उनके बिहेवियर से आप क्या फील करते हैं, आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं, आप क्या फील करते हैं, वो फीलिंग्स जो हैं वो आप शेयर कर सकते हैं. सो दैट कैन बी अ लाइव लर्निंग फॉर द पेरेंट्स दैट आर देयर इन दिस ग्रुप. सर हाँ ना, हमारे स्कूल में एक बार उन्होंने पेरेंट काउंसलिंग रखी तो मैंने पापा को बोला कि आप करोगे क्या. हाँ. पापा was like हमने 2 बच्चे अच्छे खासे पाल लिए, अभी हमें पेरेंटिंग सिखाएंगे, मैं नहीं जा रहा. गुड. सो अनुराग, आपके जो इनपुट्स हैं ना वो बहुत काम आएंगे उन लोगों के लिए जो यहाँ पे पेरेंट्स हैं. कम से कम आपके फीडबैक लेके वो अपने बच्चों के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं पेरेंटिंग को. ठीक है सर. राइट. तो आपका एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो है वो सबके लिए हेल्पफुल होगा नेक्स्ट सेशन में. राइट. चलिए, मिस्टर बहुगुणा, आपने हैंड रेस किया हुआ है. यू वांट टू से समथिंग? चलिए, ठीक है, कोई नहीं. तो फिर आज इतना ही रखते हैं फिर हम लोग. राइट. चलिए, ओके. गुड नाइट. गुड नाइट. बाय. Good night, sir. गुड नाइट. गुड नाइट. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you. गुड नाइट.